Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is comprehension passages. Comprehension exercises are intended to test and improve your ability to understand the language. They enable you to decide and conclude the main points raised in the passage. तो कंप्रीहेंशन जो होता है ये एक तरह की क्या होती है, आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाती है. Some passages are given below. Read them carefully and answer the questions that follow. तो पहला यहाँ पे पैसेज है द डंकी एंड द मैन. One day a man was going to the market with his son and his donkey. They met some people on the way. Why do you walk when you have a donkey to ride? They said. The boy is a child. Let him ride it. Help me up, father, said the boy, and the father did so happily. Soon they met a woman. How shameful of you, cried the woman. Your father is old. Let him ride. He must be tired. So the boy got down and the father rode the donkey. They went ahead. अब लोग देखो उनकी परसेप्शन के हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन को. पहले लोगों ने कहा कि डंकी खाली जा रहा है, उसके ऊपर अपने बच्चे को बिठा लो. आगे जैसे वो गए, एक लेडी ने उसको रोका कि तुम इतने जवान हो, हट्टे कट्टे हो, तुम डंकी पे बैठे हो, तुम्हारा बूढ़ा बाप चल रहा है, उसको बिठाओ. फिर उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की. Poor boy, said the next person they met. The lazy father is riding and his son is walking. So the boy also sat on the donkey. As they went on, they met some travelers. How cruel of them! They will kill the poor donkey with the weight, said the travelers. The father and the son decided to carry the donkey on their shoulders. When people saw this, they laughed. The laughter frightened the donkey. It broke free and galloped away. अब थोड़ी आगे वो गए तो एक आदमी ने कहा, अरे ये जो लड़का है ये भी अकेला चल रहा है, तो एक काम करो तुम भी बैठ जाओ. तो वो लड़का भी इस डंकी के ऊपर बैठ गया. थोड़ा आगे गए, वो कहते कि देखो कितने क्रूअल हैं, ये डंकी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं. दोनों बाप बेटे डंकी के ऊपर बैठे हुए हैं, लोड अपना डाला हुआ है. अब उन्होंने क्या किया, वो खुद उतर गए और डंकी को अपने कंधे पे बैठा लिया. अब थोड़ा आगे गए तो लोग उन पे हंसने लगे कि डंकी को अपने कंधे पे लेकर के जा रहे हैं. अब इससे क्या हुआ, लोग हंस रहे थे जोर जोर से, तो वो डंकी डर गया और डर कर वो जंगल की तरफ भाग गया. अब यहाँ पे इससे रिलेटेड बच्चों आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आप पैसेज पढ़ के इनका आंसर देंगे. हम बढ़ते हैं आगे. Squirrels. Squirrels are furry animals with bushy tails. They usually eat fruits, nuts and seeds. Most squirrels live in trees. There are several kinds of tree squirrels. The red squirrels live in Europe and Asia. The North American grey squirrel has spread to other countries. Flying squirrels can glide from the top of the trees using the fold of skins between the legs as wings. Some kind of squirrels like chipmunks live in the grounds. Like rats, they live in the holes. They have shorter tails and never climb trees. तो यहाँ पे स्क्विरल्स के बारे में बताया गया है. आपके आसपास भी आपको बहुत सारी स्क्विरल्स देखने को मिल जाती है. अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगह पे स्क्विरल्स की जो प्रजाति हैं अलग अलग वो देखने को मिलती हैं. कुछ स्क्विरल्स फ्लाइंग स्क्विरल्स भी होती हैं क्योंकि इनके लेग्स और इनके हाथ के बीच में जो स्किन होती है वो काफ़ी फैली हुई होती हैं. तो जब ये एक ट्री से छलांग लगाती है तो वो जो इनकी स्किन होती है वो इनको एज अ फेदर हेल्प करती है फ्लाई करने में. तो आप इस पैसेज को दोबारा पढ़ेंगे और दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देंगे. हम बढ़ते हैं आगे. सलीम एंड द बार्बर शॉप. सलीम वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट. ही सडनली स्टॉप्ड एट द बार्बर्स शॉप. ही सॉ अ नोटिस एट द शॉप सेइंग hair cream sold here. Salim went in and said to the barber, there is a spelling mistake in the notice. Hasn't anybody told you before? Yes, replied the barber. Lots of people have pointed out the mistake, but they have nearly bought something. Salim came out of the shop 50 rupees poorer. He had bought a bottle of hair cream. तो यहाँ पे सलीम जो है स्ट्रीट से जा रहा था जब उसको एक दुकान दिखी जिसमें उसको दुकान के नाम जो था कुछ उसको
स्पेलिंग मिस्टेक लगी, वो अंदर जाता है, दुकान के ओनर को बताता है कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। हम बढ़ते हैं आगे। अब दी गई है हमें एक पोम रेनी डे के ऊपर। It was a rainy day when I made a paper boat. Wow, it went floating, but slowly starting, I made another lovely boat. When my father came wearing a raincoat, he told me to get inside as I was fully drenched. Though my red dress was dirty, I enjoyed myself being naughty. The breeze and rain made on the roadside pool. अब यहाँ पे एक बच्चा जो है वो रेन का जो मौसम है या रेनी डे जो है वो एंजॉय कर रहा है। आप लोग भी पेपर बोट्स वगैरह बनाते हैं, उसने भी बनाई है अपनी पेपर बोट्स को, पानी के पडल्स जो बने हुए हैं उनमें वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, ऐसे पोम को दोबारा से रीड करेंगे और दिए गए क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे। सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। नाउ यू विल रिवाइज द चैप्टर एंड प्रैक्टिस द गिवन एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड द चैप्टर थॉरोली।